Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hari Bol. So before we start with our session, it'll be an 18-day session. It'll be very interesting session. So बहुत सारी activities होंगी. So we will be going through some rules. So I know these are not, we are not in a school, so it is not really a school rules. But since all of us will be doing these things together, so we'll be all friends. So everyone present here will be friends, right? So जो friends होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे behave करते हैं? How do friends behave with each other? Mataji, good. Say that again, बेटा. We talk with each other. हाँ, we talk with each other. और फ्रेंड्स का बिहेवियर कैसा होता है एक दूसरे के तरीके? माता जी हम फ्रेंड्स की मदद भी करते हैं. We do help. Yes, we help friends. Very nice. What else? Mataji, we are comfortable with our friends. We are comfortable with our friends. Why are we comfortable with our friends? क्योंकि हमारे फ्रेंड्स कैसा क्या करते हैं जब उनके वजह से comfortable होते हैं? भी करते हैं. माता जी, we can just share something with our friends so that we can just also be happy and. Yes, we can share with our friends and we know that our friends will not judge us. वो हम जो शेयर करेंगे उसके बेसिस पे हमें जज नहीं करते हैं, right? What else? फ्रेंड्स रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की? Yes, Mataji. वो हमारी बातों को समझते हैं. हाँ, हमारी बातों को समझते हैं. वेरी नाइस. और समझने से पहले वो हमारी बातों को सुनते हैं, राइट? बिकॉज only when they listen will they understand, है ना? पहले वो सुनते हैं और हमारी बातों को समझते हैं. सो अगले 18 दिन के लिए हम सब लोग फ्रेंड्स हैं. तो हम सब लोग एक दूसरे की बात को सुनेंगे, समझेंगे, हेल्प करेंगे. ओके, इज दैट फाइन विद ऑल ऑफ यू? Are all of you agree? All of us are friends for next 18 years, and of course after that also. Continue after that also. Okay, so for that purpose we have some house rules, and this house rules is only to ensure कि we listen to each other. ऐसा ना हो कि सब लोग इकट्ठे बोल रहे हो और हमें किसी को बात सुनाई ना दे. जैसे कि जय प्रभु जी wants to say something या दर्शिता माता जी wants to say something और सब लोग इकट्ठे बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, right? So we have this house rule, so we'll read this one by one. So शौर्य प्रभु जी आप फर्स्ट वाला रूल पढ़ोगे जो फर्स्ट वाला स्क्रीन पे लिखा है, आपको दिख रहा है बेटा? ओके, आयुष्मान प्रभु जी आप पढ़ोगे फर्स्ट वाला? Yes, ma'am. Please be punctual for class. ओके, हरी बोल. वेरी नाइस. प्लीज बी पंक्चुअल टू क्लास. इसका क्या मतलब हुआ? हमारी क्लास शुरू होती है 4:30, तो हमें 4:45 आना चाहिए आराम से, ना? इसका मतलब माताजी 4:25 आना चाहिए. हाँ, 5 minutes पहले आना चाहिए. यस, परफेक्ट, वेरी नाइस. माताजी. हाँ, यस यस, यू रीड द सेकंड वन प्लीज. Rename yourself according to your name and age. हाँ, yes. So it'll be very nice अगर आप अपने आप को रीनेम कर सको अपने नाम से, because कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी भी I think somebody is logged in with iPhone. So if I want to address you, so Yanak Prabhuji, right? Is that right? Why Yaniki? So instead saying Yanak, I would say iPhone, unmute yourself. तो कितना अजीब सा लगेगा ना, है ना? No मैम मैं लैपटॉप से ऑपरेट कर रहा हूँ. Okay, perfect. Yes, yes. Can I? हाँ, yes. Go ahead. Read the next one. Okay, ma'am. Start now. Turn on your web camera unless not available or not working. हाँ, yes, very important. आप लोग अपना कैमरास ऑन करोगे ना, it'll be very nice. I can see all of you. मैं आप सब लोग को देख सकती हूँ. So turn on your cameras and you can see me also, right? आप सब लोग को मैं दिखाई दे रही हूँ ना? So जब आप कैमरा ऑन करोगे, then I'll be able to see your faces, and I'll be able to, if you raise your hand on your camera, I can see that also. Okay? Yeah. Thank you, Pavni. Thank you, Jay Prabhuji. Okay. Next one. Ma'am, can I read? Hi, yes, go ahead. Be respectful to all the participants. Yes, be respectful to all, like friends are respectful. And how can we be respectful? We should listen when somebody else is speaking. Okay, perfect. So who wants to go next? Arav Prabhuji, do you want to read the next one? Okay, Mataji. Yes.
Be respected. हाँ, Be इसके नेक्स्ट वाला बेटा. sorry, Mataji. हाँ, कोई बात नहीं. That is only allowed for activity purpose according to the teacher instructions. Yes, yes. Thank you. So chat. So if you chat now, what will happen is if you do too much of chatting, what will happen is आप distract हो जाओगे और important point miss कर दोगे. So use chat only when there is an activity. Okay. Okay. Radhika Mataji, do you want to go next, beta? You can unmute yourself. Yes. Hi, go ahead. Yes, Mataji. To ask Mike any question, you can click the raise your hands button. Please ask your questions at the end of the class. Perfect. Very nice. Thank you. So if you want to ask a question, raise your hand like all of you raised right now. Thank you so much. Okay. Who else? Now we have Shagun Mataji. Stay muted unless you have a question or comment. So there are no description. Yes, perfect. So questions, I would request आप questions जरूर पूछो, but keep those questions till the end. ठीक है? Questions are very important and we'll discuss why questions are very important. And Shagun Mataji, if you can read the last one also. आप last वाला भी पढ़ दो बेटा. Most importantly, have fun. Yes, most importantly, enjoy and keep your cameras on because I can see your smiling faces from here. Okay, I can see Manan Prabhuji, I can see Krishna Prabhuji, Shagun Mataji, Charu Mataji, Radhika Mataji, Arya Prabhuji, Jay Prabhuji, and Pavni Mataji, Shaurya Prabhuji. Yes, and Yanak Prabhuji, am I pronouncing your name correctly? Is it Yanak, right? Yannick. Yannick. Y-A-N-E-K. Yannick. Okay, Yannick. I can see Ayushman Prabhuji, Darshita Mataji. Wonderful. Great. So, Bhagavad Gita. So, Bhagavad Gita, we know, was spoken 5,000 years back. Can anybody tell me in which yuga was it spoken? You can raise your hand. कौन से युग में अच्छा अभी कौन सा युग चल रहा है? Okay, sorry. I think let me give you an option to unmute. Okay, sorry. अभी कौन सा युग चल रहा है? Yes, very nice. और कौन से युग में भगवद गीता बोली गई थी? द्वापर द्वापर युग. That's right. That's right. द्वापर युग. और द्वापर युग was कलयुग से बिल्कुल एक पहले वाला युग, यानी कि वो युग में जिस युग में कृष्णा आए थे, कृष्णा स्वयं आए थे, right? Okay, let me ask you more. हाँ जी बेटा, yes. Mataji, sorry to disturb, but actually I have started this meeting, but the voice is cutting really a lot and I'm getting disconnected. Okay, okay. Let me check. Is my voice cutting for everyone? Actually, the weather is weather थोड़ा अजीब सा हो रहा है. हो सकता है weather. No, ठीक है. No way. So Vani Mataji, I will check my internet connection. Maybe कुछ connection में कुछ problem है. ठीक है? Okay. Thank you. Thank you. Mataji. Okay. So and Bhagavad Gita was, where was Bhagavad Gita spoken? Kurukshetra. Yes, yes. पर कुरुक्षेत्र में कहाँ पर बोली गई थी? मतलब महल में कृष्णा वो सेइंग कि चलो आओ आज मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन बताता हूँ. अर्जुन माय बेस्ट फ्रेंड बताई थी उन्हें. कहाँ पर बताई थी शीतल माता जी? से देने गए माताजी उन्होंने बताया था उन्हें. बैटलफील्ड में. यस, लड़ाई के मैदान पे बताई थी. ऐसा नहीं कि वो लोग अपने महल में थे और कृष्णा ने बोला माय बेस्ट फ्रेंड अर्जुन कम लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, लेट मी टीच यू अ लाइफ लेसन टुडे. आपको मैं जिंदगी का एक बहुत अच्छा लेसन बताने वाला हूँ. नो, इट वाज टोल्ड ऑन द बैटलफील्ड. नाउ इमेजिन कि कहाँ पर बोली, लड़ाई के मैदान में, राइट? सो इमेजिन करो अगर इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, लड़ाई हो रही है, ठीक है? लेट्स से यू नो कश्मीर में लड़ाई हो रही है इंडिया पाकिस्तान की, एंड सडनली एक सैनिक बोलता है अपने मेजर से कि मुझे आपसे बात करनी है, आई वांट टू डिस्कस विद यू, मुझे आपसे ज्ञान लेना है, राइट? सो हाउ विल इट फील कि दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, you know, and suddenly he wants to talk, he want to have discussion in between a war. तो
what critical situation is that to take information or have discussion, right? Isn't it a critical situation? लड़ाई के दौरान कोई किसी से बात करना चाहता है, that's a critical time, right? लड़ाई के दौरान तो हम क्या करते हैं? We safeguard ourselves, हम एक तो हम अपने को बचाते हैं और of course अटैक करते हैं, पर वो करने की बजाय अर्जुन wanted to speak to Krishna, right? And so very important where it took place, which is the battlefield of Kurukshetra. और किसके बीच में हुई थी? माताजी अर्जुन और कृष्ण। हाँ, yes, very nice. Pandavas and Kauravas. So Pandavas और Kauravas कौन थे? Who were they? पांडव 5 भाई थे हाँ, और और Kauravas? 100 brothers. 100 लड़की और एक लड़की. Yes, Darshita Mataji. 100 brothers and 1 sister. Very nice. एक लड़की. एक sister थी. हाँ, so Kauravas और Pandavas एक दूसरे से connected कैसे थे? मतलब how were they connected? माताजी उनके फादर थे। Their father was same. हाँ, yes. माताजी उनके फादर्स ब्रदर्स थे दोनों। हाँ, yes. So धृतराष्ट्र जो कौरवास के फादर थे और पांडु जो पांडवास के फादर थे वो दोनों ब्रदर्स थे। तो ये लड़ाई हो रही थी दो, लाइक अ चाचू। हाँ, yes, like चाचू ताया, right? और ये लड़ाई हो रही थी दो कजन ब्रदर के बीच में, दो कजन ब्रदर्स के बीच में लड़ाई हो रही थी, राइट? अच्छा, आपको पता है जब भगवान राम की लड़ाई हुई थी रावण से, सो लड़ाई कहाँ हुई थी? दो कंट्रीज के बीच में हुई थी, राइट? इंडिया एंड श्रीलंका। यस, दैट्स राइट। और उसके बाद उससे पहले सतयुग में जब लड़ाई हुई थी तो एक्चुअली में दो वर्ल्ड के बीच में हुई थी, मतलब कि धरती से बाहर लड़ाई हुई थी। लेकिन द्वापर युग में जब लड़ाई हुई, जब द्वापर युग वाज एंडिंग, इट वाज बिटवीन 2 फैमिली, मतलब एक ही फैमिली के अंदर कजन्स ब्रदर्स के बीच में लड़ाई हो रही थी, राइट? लेट्स नो मोर अबाउट इट, कुछ और जानते हैं इस बारे में, ठीक है? सो वी नो दैट भगवद गीता इज अ पार्ट ऑफ अ बुक कॉल्ड महाभारत. Mahabharat is also called Itihas. Mahabharat is called history. What is Itihas? Do you know what is Itihas? English में इतिहास को? The pastimes of our world. Yes, इतिहास is history. It is not mythology. जैसे हमें बताया जाता है ना कि mythology का मतलब होता है myth, मतलब fairy tale. So महाभारत fairy tale नहीं है. Mahabharat is in history. It is history of India. So Bhagavad Gita. Yes, that's right. Yes. So Bhagavad Gita is a part of the history of ancient India, right? और ये किसने बोली थी भगवद गीता का ज्ञान? कृष्णा ने अर्जुन को दिया था, like all of you said, in the battlefield of Kurukshetra. Okay? And in the Kurukshetra, basically when Bhagavad Gita was spoken, Bhagavad Gita is basically dialogue between Arjun and Krishna. So Arjun ने कुछ questions पूछे, कृष्णा ने उनके जवाब दिए. So इसलिए in the beginning I said that it is important to ask questions, right? जैसे आप लोग questions पूछ रहे थे. So asking questions is very important, क्योंकि अगर अर्जुन ने questions नहीं पूछा होता तो कृष्णा ने हमें भगवद गीता का ज्ञान नहीं दिया होता. So we should be very thankful to Arjun कि उन्होंने question पूछा. So therefore we would encourage all of you also to ask question, but towards the end. ठीक है? So भगवद गीता में we can see कि 84 श्लोकास are spoken by अर्जुन. दैट मीन्स उन्होंने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे और उनके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कृष्णा ने 574 श्लोकास बोले, व्हिच मींस बेसिकली डायलॉग्स बोले. एंड देन 41 श्लोका वाज स्पोकन बाय संजय. सो विल टेल यू हु संजय इज एंड व्हाई वाज ही स्पीकिंग. मतलब वो तो कुरुक्षेत्र के बीच में भी नहीं था, तो संजय क्यों बोल रहा था? संजय के डायलॉग कैसे आ गए भगवद गीता के अंदर, वो भी हम देखेंगे. और सिर्फ एक, वन एंड ओनली श्लोका was spoken by Dhritarashtra. Okay, Dhritarashtra, who is the father of Kauravas. Now let's see, जो war हो रही थी वो it was a huge war. It was not like India Pakistan Kargil war. It was huge. उनकी armies इतनी बड़ी बड़ी थी. Do you want to know? If you see कि जो Kauravas है उसके पास 11 अक्षौणी सेना थी. So एक पूरी सेना को अक्षौणी सेना कहा जाता है, जिसमें एक अक्षौणी सेना के अंदर there are 21,870 chariots, यानी रथ.
21,000 रथ होते हैं और इसके अंदर है 21,000 हाथी, एलिफेंट्स, इमेजिन। और ऐसे कर कर 11 सेना थी। सो इमेजिन 21,000 मल्टीप्लाइड बाय 11, इतने एलिफेंट्स थे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सिर्फ कौरवास की साइड से। और 21,000 मल्टीप्लाइड बाय 11, इतने सारे रथ थे ओनली फ्रॉम कौरवास साइड। और 65,000 मल्टीप्लाइड बाय 11, इतने सारे हॉर्सेस थे। और सेना कोई काउंटिंग ही नहीं है, 109 लाख मल्टीप्लाइड बाय 11, इतने सारे सैनिक से जो पैदल चल रहे थे। So there was huge army, and why it was huge army? Because जो कौरवास थे उनकी अपनी आर्मी तो थी, पर उन्होंने आसपास की जितने भी राज्य थे उनसे सपोर्ट लेकर लड़ाई लड़ी थी, राइट। सो टोटल मिलाकर 11 अक्षौणी सेना थी कौरवास के पास और 7 अक्षौणी सेवा थी पांडवास के साथ। यस यस, पांडवास के पास सेना कम थी, बट वी सी कि पांडवास के सेना के पास सेना कम होते हुए भी दे वर द विनर्स, उनकी जीत हुई, राइट। ओके, सो भगवत गीता। सो भगवत गीता का जो लिटरल मीनिंग होता है वो मतलब होता है भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। सो इट इज भगवत गीता, गीता इज लाइक गीत। सो भगवान ने गीत गाया, whenever Krishna speaks something, it's like a song. So भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत is भगवत गीता, right? Now let me ask you something. So मैंने हमने एक मैसेज डाला था कि आप सब लोग के पास अगर घर में कोई यूजर मैनुअल है तो आप उसको लेकर आना है। तो आप में से कोई लेकर आया है कोई भी गैजेट का यूजर मैनुअल? आई सी चारू माता जी लेकर आए। चारू माता जी, ये किसका मैनुअल है, यूजर मैनुअल है? क्रॉम्पटन का। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। ये क्रॉम्पटन के फैन का है, इज दैट राइट? यस माता जी। हाँ, तो इस यूजर मैनुअल में क्या लिखा हुआ है चारू माता जी? इफ यू ओपन दिस, इसमें आपको इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? माता जी, वारंटी हाँ, एंड सेफ्टी गाइड, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन, यस, वायरिंग, identification of parts and dimensions, अमेजिंग, and maintenance. वेरी नाइस। तो हमें यूजर मैनुअल से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? सेफ्टी गाइडलाइन, मेंटेनेंस, पार्ट्स जिसके पार्ट्स है उसको कैसे मेंटेन करना है, वारंटी मिलती है, राइट, स्पेसिफिकेशन मिलते हैं कौन से पार्ट्स होते हैं। अब यूजर मैनुअल क्यों जरूरी है? सो चारू माता जी, व्हाई इज दिस यूजर मैनुअल नेसेसरी? अगर हमारे पास यूजर मैनुअल नहीं होगा तो इससे क्या होगा? मैम, जो भी इसके यूजेस हैं और जितने वायरिंग का सिस्टम है वो हमें पता नहीं चलेगा, हम कुछ भी गलत कर देंगे। हाँ, राइट, क्योंकि उसमें जो यूजेस हैं वो हमें नहीं पता चलेगा, हम कुछ भी गलत कर देंगे, राइट। ओके, लेट्स सी, एनीबॉडी एल्स हैज गॉट एनी मैनुअल? कोई और लाया है? यस, शीतल माता जी। यस यस, शीतल बेटा, आप कौन सी मैनुअल लेकर आए हो? माता जी, ये मेरी मम्मी के मोबाइल फोन के है। वेरी नाइस। और इसमें इस मैनुअल में क्या क्या लिखा हुआ है? व्हाट, किस तरह की इंफॉर्मेशन है? जी, इसमें इसके फीचर्स बताए गए हैं कि मतलब सिम कार्ड हमें कैसे यूज करनी है, और इसमें अलग अलग टाइप के एप्स होते हैं, और हाँ, इसमें क्या हमें सेफ्टी ध्यान रखनी होती है कि क्या चीज हमें नहीं करनी वरना मोबाइल फोन खराब हो जाएगा, कितने टेम्परेचर पे रखना है। हरी बोल, वेरी नाइस, परफेक्ट। और अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? लेट्स से अगर हमने यूजर मैनुअल को हमने देखा ही नहीं और हमने खुद से फोन ऑन करने की कोशिश करी, तो क्या होगा? माता जी, जैसे अगर हम ज्यादा फोन इस्तेमाल करेंगे तो बैटरी ज्यादा हीट हो जाएगी, जिससे कि बैटरी ब्लास्ट भी हो सकती है। और अगर हम अगर मैनुअल नहीं पढ़ते और अगर हम कोई चीज गलत कर देते हैं तो फिर मोबाइल में उसकी वजह से डिफेक्ट्स आ जाते हैं। हाँ, यस, जैसे सबसे पहले आपने बोला कि सिम कैसे डालना है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि सिम कैसे डालना है तो हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कहीं ना कहीं से खोलने की कोशिश करेंगे कि खुलेगा कहाँ से सिम डालने के लिए। आजकल तो वो पिन वाला था ना, यू प्रेस अ पिन, वो कार्ड बाहर निकल जाता है सिम डालने के लिए। नहीं तो हम बैग खोलते रहेंगे, अरे बैग खोलो, सिम कार्ड डालना है, सिम कार्ड डालना है, तो वो टूट जाएगा फोन,
राइट? माता जी यहाँ पर पिन है भी इसमें। इसमें पिन भी दे रखी है। यस, वेरी नाइस। यस, चौरे प्रभु जी, वांट टू से समथिंग बेटा? यस, मैं कूलर का मैनुअल लाया हूँ। वेरी नाइस, परफेक्ट। और इसमें इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कूलर के मैनुअल में? ऊपर एक वो था ना रेड कलर का सिम कार्ड का। इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं मैम। ये वो रिमोट देखो। कूलर है ये। हाँ, वेरी नाइस। ये भी बताते हैं कौन से मेक का कूलर है, राइट? हाँ, मैम 10 स्टार का है ये। 10 स्टार का, राइट? और ये भी बताते नहीं अगर ये खराब हो गया तो हमें किसको किसको अप्रोच करना है। लेट्स से इसमें लिखा है कि अगर अगर कूलर खराब हो गया तो हमें कौन से नंबर पर कॉल कर कर हम इसका रिपेयर करा सकते हैं। और क्या क्या लिखा है इस मैनुअल में? मैम इसमें वारंटी कार्ड भी दे रखा है। वारंटी कार्ड भी दे रखा है। यस, वेरी नाइस। सो जैसे ये मैनुअल्स होती हैं, ये हमें हर गैजेट के साथ मिलती है, राइट? सो आरव प्रभु जी, क्या ये मैनुअल जरूरी होती है? हमें हमें मैनुअल्स को पढ़ना चाहिए कि हमें मैनुअल को नहीं पढ़ना चाहिए? यस माता जी, पढ़ना चाहिए। यस, यू ऑल एग्री हमें मैनुअल को पढ़ना चाहिए ना? अगर हम मैनुअल को नहीं पढ़ेंगे तो जो भी गैजेट है हम उसको प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाएंगे, राइट? यस, वेरी नाइस। ओके, सो लेट मी। मैम इसमें पावर स्पीड सब बता रखा है इसमें। हाँ, वेरी नाइस। सी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है मैनुअल के अंदर। अब आपको पता है कि हमारी लाइफ की भी एक मैनुअल है, एंड इट इज अ फैक्ट, हमारी लाइफ की मैनुअल है। एंड कैन एनीबडी गेस वो हमारी लाइफ की मैनुअल क्या है? हमारी जिंदगी की मैनुअल क्या है? Oh, sorry, let me unmute you. Sorry, माता जी, sorry. भगवद गीता। Yes, भगवद yes, गीता। this Bhagavad Gita, this is the life manual, our life manual. तो जितनी इंफॉर्मेशन आपको अपने सारे मैनुअल में मिली है, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें हमारी लाइफ के बारे में है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या करना है, उसकी वारंटी कितनी है, उसको यूज कैसे करना है, सिम कार्ड कहाँ डालना है, ठीक है? यानी कि हाउ टू ऑपरेट अ लाइफ, एवरीथिंग इज गिवन इन भगवद गीता. And why we should read Bhagavad Gita is because if we are able to read this, then we will be able to live our life happily. अगर हम किसी गैजेट के मैनुअल को पढ़ते हैं तो हम उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग द गैजेट, है ना? बिल्कुल वैसे ही हम अपनी लाइफ का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग आवरसेल्फ इफ वी रीड भगवद गीता. ठीक है? सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल डू इन द नेक्स्ट 18 डे. अगले 18 दिन में हम एग्जैक्टली यही करने वाले हैं. ओके? सो भगवद गीता में हम 5 सब्जेक्ट मैटर होंगे. देयर विल बी 5 थिंग्स दैट यू विल बी हियरिंग इन भगवद गीता. मतलब भगवद गीता में 4 सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा. ठीक है? सो ये सब्जेक्ट है, फर्स्ट इज ईश्वर यानी कि भगवान, सेकेंड इज जीव यानी कि लिविंग एंटिटी, थर्ड इज प्रकृति यानी कि द मटेरियल नेचर, फोर्थ इज काल which is time, and fifth is karma which is activity. ठीक है? तो ये 5 जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी है. why it is important to learn remember these things, क्योंकि आप जब भगवद गीता पढ़ोगे ना, ये 5 चीजें बार बार आती रहेंगी. so you will be able to see कि अच्छा हमने ये 5 चीजें कवर कर ली. ठीक है? तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, ये 5 चीजों को लर्न करने की कोशिश करते हैं with the help of an action. ठीक है? who all wants to learn the 5 things, 5 very important things of Bhagavad Gita? Yes, thank you Sheetal Mataji, Krishna Prabhuji, maybe Shayad. Yes, thank you Ara Prabhuji, thank you. Okay, thank you Nishika Mataji. So we'll learn this with the help of, thank you Pavni Mataji, we'll learn this with the help of actions. ठीक है? So all of you can repeat after me. ठीक है? So first one is Ishwar. Okay, you can speak. ईश्वर, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, like time, like a watch, right? And karma. Okay, so 5 things. Ishwar, जीवा, प्रकृति, काल, कर्म,
Was it easy? You all understood? Yes, Yes, Mataji. Mataji. Okay, perfect. So let's see. Pavni Mataji, आप हमें करके दिखाओगे एक बार? Do you remember all of them? Okay, let me spotlight for everyone. मैम ईश्वर, कहना है Ishwar, go ahead, Pavni Mataji. Yes. ईश्वर, Jiva, माताजी कहना है Jiva, very good. जीवन, प्रकृति, Prakriti, action भी काल, कर- कर्मा. karma. Very nice. Perfect. Yes. Okay. So I know all of you want to do, but let's do just one or two more because there's lots to cover. Okay. So Mataji, Krishna can I? Prabhuji, can Krishna Prabhuji do? Yeah. Okay. Go ahead, Krishna Prabhuji. Action. Ishwar, Jiva, जीवा, प्रकृति, कर्मा, and time. Time को क्या बोलते हैं? काल. Kaal. Yes, very good. Perfect. Okay. Thank you so much, Krishna Prabhuji. Okay. So Manan Prabhuji, आप action के साथ करोगे? आपको action याद हो गए? Okay, let me spotlight it for everyone. Yes, Prabhuji. ईश्वर, Yes. ईश्वर, जीवा, Prakriti. प्रकृति, काल और कर्मा. Very nice. Hari bol. Perfect. See, all of you are very nice. All of you are very expert. Okay. So we'll move ahead. So these are the 5 things that you will be hearing a lot now that we'll be doing this Bhagavad Gita. These are 5 subject matters that you will be discussing. Okay. So the first chapter is called Observing the Armies on the Battlefield of Kurukshetra. Now every chapter has a chapter name. हर chapter का एक chapter का नाम है और वो chapter का नाम इतना important है क्योंकि वो chapter की summary बताता है, right? जैसे first chapter का नाम है Observing the Armies on the Battlefield of Kurukshetra. अब observing का army का मतलब हुआ कि observe करना यानी कि देखना, यानी कि first chapter में लड़ाई शुरू नहीं हुई, right? Is that right? Do you all agree? क्योंकि observe हो रहा है, right? Observing the armies. पर ये observe कौन कर रहा है? कौन आपके हिसाब से कौन देख रहा होगा आर्मीज को? Who is observing? Okay, कृष्णा देख रहे हैं. Yes. और कौन देख रहा है? अर्जुन. अर्जुन. Yes. अर्जुन. अर्जुन. Yes. और भी कोई देख रहा है, आपको पता है? धृतराष्ट्र. धृतराष्ट्र. Yes. धृतराष्ट्र किसकी नजरों से देख रहे हैं? मैम माताजी संजय है. Yes, that's right. ठीक है. So हर एक चैप्टर का नाम बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. So we'll try to remember the name of all the chapters. ठीक है. और सबसे आसान तरीका चैप्टर के नेम याद करने का है is through actions. So let's try to remember the name of this chapter through action. So if you want, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इनफैक्ट इससे पहले वाले का भी ले सकते हो, so that you remember the names and then you can remember the action. So ये जो है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. मैं आपको वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप में I will send you, but if you want you can quickly take the screenshot of these 5 subject matters. ठीक है. एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो because I will stop sharing और हम इसको एक्शन करेंगे. इसके नाम को एक्शन में कन्वर्ट करेंगे. दमशराज अगर हमें खेलना हो और हमें बताना हो कि चैप्टर 1 का नाम क्या है तो हमें क्या एक्शन करना चाहिए. ठीक है. परफेक्ट. ओके. सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग. सो इसके बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं, बट वन एक्शन आई कैन टेल यू एंड सेकंड एक्शन यू कैन डिसाइड. सो वी कैन से ऑब्जर्विंग, जैसे ऑब्जर्व करते हैं ना, ऑब्जर्विंग द आर्मी, धनुष बाण, द आर्मी in the battlefield of Kurukshetra. ठीक है. Let's do it one more time. Observing the armies on the battlefield of Kurukshetra. Okay. एक बार और करते हैं. Is it clear to all of you? Yes, Mataji. Yes, Yeah. ma'am. So, Yes, Mataji. observing, आप ऐसे भी कर सकते हो. Observing Observing armies army in the battlefield
तलवार के साथ बैटल हो रही है ना, बैटल फील्ड, टक 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 टक, बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कुरुक्षेत्र ऐसे। ओके परफेक्ट। ओके सो आपको याद हो गया? नहीं, वंडरफुल। सो टाइम रिपीट। हाँ, यस यस शो बेटा। Who wanted to repeat? एक बार नाम बताना बेटा। Who wanted to? माताजी शगुन। Shagun, yes Mataji, sure. Yes, go ahead. Let me spotlight for you. Go ahead. Observing the armies of the battlefield of Kurukshetra. Very nice. Perfect. Hari bol. Very beautiful. Okay. So who else wants to do it? Mataji, can I? Mataji, can I? Ma'am, can I? Okay, we'll take two more. Mataji, can I? Somebody who's not got a chance. Okay, Hari bol. Hari bol. Yeah, okay, perfect. I will. All of you will get lots of opportunities to speak because बहुत सारे activities हैं आगे, ठीक है? So let Darshita Mataji do, and then all of you will get an opportunity. Don't worry. Darshita Mataji, do you want to unmute yourself? Yes. Observing the armies in the battlefield of Kurukshetra. Very good. Hari bol. Very, very nice, Darshita Mataji. Okay, so we'll just take one more. Who else? Shaurya Prabhaji, do you want to try? Yes, ma'am. Yeah, go ahead. Observing battlefield. Observing the armies. Observing the army and Kurukshetra. Yes, perfect. Observing the armies in the battlefield of Kurukshetra. Very nice, Shaurya Prabhaji. Okay, perfect. So we'll move ahead. Okay, Vidit Prabhaji, go ahead. Observing the armies in the battlefield of Kurukshetra. Very nice, very good, perfect. Okay, so this is the first chapter, and what we'll do is, as and when we start doing more chapters, we'll revise the previous chapter name as well. ठीक है, जैसे हम chapters 2, 3, 4, 5 में जाएंगे, पुराना revise करते रहेंगे. Is it fine? So in the first chapter, what is happening is, जैसे हम सबको पता है कि सब लोग कहाँ हैं, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में है. They're all in the battlefield of कुरुक्षेत्र. और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कौन कौन है? एक तरफ कौरवास है और एक तरफ पांडवास है. Now all of a sudden वहां पर धृतराष्ट्र is watching the कुरुक्षेत्र war. और वो कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल वैसे जैसे आप सब लोग आईपीएल देखते हो. आप सब लोग आईपीएल देख रहे हो ना? अभी आईपीएल चल रहा है, राइट? Ma'am, finish it. फिनिश हो गया. ओके फाइन. हु वन द फाइनल? कौन जीता फाइनल? माताजी गुजरात. गुजरात राइट. तो फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था? कौन सी जगह पर हुआ था? मैम नरेंद्र मोदी स्टेडियम. अहमदाबाद में हुआ था. तो आप सब लोग अहमदाबाद गए थे देखने के लिए? नो मैम, मेरी बुआ का घर है वहाँ पे. तो आप सब लोग अहमदाबाद नहीं गए थे देखने के लिए? तो फिर आप लोगों ने कैसे देखा फाइनल मैच? घर बैठे बैठे देख लिया? बेटे आपने अहमदाबाद का मैच देख लिया? ऐसे कैसे हो गया? लाइव देखा था. यस दैट्स राइट. सो जैसे हम लाइव मैच देख सकते हैं, वैसे ही धृतराष्ट्र के एक सर्वेंट थे जिसका नाम था, एनीबॉडी वांट्स टू गेस उनका क्या नाम था? संजय. तो संजय के पास ना पावर थी. ही कुड सी लाइव. वो कहीं भी बैठे हुए पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी लाइव कुछ देख सकते थे. और ये पावर उनको एक्चुअली दी थी श्रीला व्यासदेव ने, सिर्फ इसी टाइम के लिए, जब ये वॉर चल रहा था उसी टाइम के लिए, राइट?
सो जैसे हम जब मैच हो रहा था तब लाइव परफॉर्मेंस आता है, उसके अलावा वी कांट सी ना कि वहां पर ग्राउंड में क्या हो रहा है, सिर्फ जब मैच हो रहा था तभी हमारे को लाइव परफॉर्मेंस पता चलता है। सिमिलरली संजय को ये पावर मिली थी बाय श्रीला व्यासदेव कि वो ये देख सके कि उस समय वॉर में क्या हो रहा है, और वो क्यों, क्योंकि धृतराष्ट्र वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिज सन्स और वो देख नहीं सकते थे, ही वाज ब्लाइंड। सो इसलिए संजय वाज गिविंग हिम द लाइव एक्शन रिपोर्ट, उनको लाइव वॉर की रिपोर्ट दे रहे थे। अब जो फर्स्ट श्लोक है भगवत गीता का, दैट इज स्पोकन बाय धृतराष्ट्र एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग श्लोका। सो व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग कि सब लोग बैटल फील्ड पे थे और धृतराष्ट्र ने एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन पूछा, राइट? सो लेट्स सी। Mamta Mataji, do you want to read the meaning of this shloka? हिंदी या इंग्लिश में आप ये पढ़ना चाहोगे? Ma'am, can I read? Ma'am, can I read? हाँ, so all of you will get an opportunity to read. So Kashri Mataji, do you want to read the meaning of this message? Yes, Mataji. हाँ ठीक, आप इंग्लिश हिंदी किसी में भी पढ़ सकते हो, okay? Lord Krishna blew his conch shell called. Sorry, ये वाला, sorry, wrong one. Yes, go ahead, beta. Dhritarashtra said, "O Sanjaya, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do?" हाँ, right. अब कोई हिंदी में पढ़ेगा इसको? Anybody wants to read this in हिंदी? दर्शिता माता जी, आप हिंदी में पढ़ोगे इसको बेटा? Yes, go ahead. हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? हाँ, राइट। सो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि हे संजय, युद्ध भूमि में यानी बैटल फील्ड में एक तरफ को कौरवास है, एक तरफ को पांडवास है, वो सब लोग इकट्ठे तो हो गए, पर अब उन्होंने क्या करा? तो ये बहुत ही फनी क्वेश्चन है, राइट? क्योंकि अगर हम बैटल फील्ड में है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो वो क्या करेंगे? वो भंगड़ा तो नहीं करेंगे, राइट? वो क्या करेंगे दर्शिता माता जी? अगर एक तरफ इंडिया है और एक तरफ पाकिस्तान है और वो दो लड़ाई के मैदान पर है, दोनों के पास गन्स है, तोप है, तो वो क्या करेंगे? दर्शिता माता जी, सॉरी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, क्या करेंगे वो? वो लोग लड़ाई करेंगे, अगर वो लड़ाई के मैदान में आए तो वो लोग लड़ाई करेंगे। यस, अगर वो लड़ाई के इंटेंशन से आए तो लड़ाई करेंगे, राइट? इट इज जस्ट लाइक कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में हम बैठ जाते हैं और हमारे आगे खाना आ जाता है, तो हम क्या करेंगे उस समय? व्हाट विल वी डू? सॉरी माता जी, आपका नाम आईफोन से, व्हाट इज योर नेम? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। व्हाट इज योर नेम बेटा? नाम ख्याति। ख्याति, राइट? ओके, यस ख्याति। सो अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमारे आगे लेट्स सी वी गॉट अ चाइनीज क्विजीन, राइट? तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम रेस्टोरेंट में गए, हमारे टेबल पे चाइनीज क्विजीन है, हम खाएंगे। यस, हमने ऑर्डर करा, हमारे आगे खाना, तो हम उसको खाएंगे, राइट? सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम अगर रेस्टोरेंट में गए हैं तो हम खाना ही खाएंगे। सो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर कौरवास और पांडवास कुरुक्षेत्र की भूमि में है, लड़ाई की इच्छा से एकत्र हुए हैं, तो वो क्या करेंगे? वो लड़ेंगे। But Dhritarashtra is asking Sanjay, you know, my sons and Pandu's sons are assembled in Kurukshetra, desiring to fight. But what did they do? उन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि उनके मन में एक डर था कि कहीं पांडवास लड़ाई से मना ना कर दे, because he was favoring his son Duryodhan, जो सब कुछ अपने लिए चाहता था, right? So after this what happened? कि both the parties were assembled, एक तरफ कौरवास थे, एक तरफ पांडवास थे। अब लड़ाई शुरू होने से पहले सबसे पहले शंख बजाया जाता है, ठीक है, ब्यूगल बनाया जाता है। अब ये जो पहला श्लोक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम लर्न भी करेंगे, टुवर्ड्स द एंड वी विल लर्न, पर ये हम इसको रिसाइट कर लेते हैं श्लोका को। सो विद इट प्रॉपर्टी, डू यू वांट टू रिसाइट द श्लोका एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन?
My voice is clear? Is everyone able to hear me? My voice is clear? Yes, Mother. Yes, ma'am. Yes, Mata. Okay, perfect. Okay, perfect. So let me recite the shloka. It's okay. Vidit Prabhuji, you here? So you can recite the shloka. Yes, Mataji. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवश्चैव किम अकुर्वत संजय. Yes, this is a very nice shloka, and we will be reciting it towards the end. Okay, all of us will be learning this towards the end. उसके बाद सब लोगों ने, कौरवस ने और पांडवस ने अपने अपने शंख बजाए. So it says पंचजन्य ऋषिकेशो देवदन्तं धनञ्जय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः. So ये डिफाइन करता है कि कौन कौन से किस किस के जो शंख है उसके नाम क्या है. तो लेट्स सी हु वांट्स टू रीड दिस वन. पार्थ प्रभु जी, आप इसका मीनिंग पढ़ोगे? इंग्लिश और हिंदी किसी में भी पढ़ सकता. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. माता जी, भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजाया, अर्जुन ने देव शंख था, नाम शंख बजाया. Yes, very nice, perfect. हरि बोल. Thank you so much पार्थ प्रभु जी. So भगवान कृष्ण का जो शंख है उसका नाम है पंचजन्य. इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, right? Yes, Krishna Prabhuji, do you want to read the meaning in Hindi? English. Yes. Yes, Mataji. Yes. Lord Krishna blew his conch called Panjanya. Arjun blew his the Devadatta, and Bhima, the voracious eater and performer of Herculean task, blew his terrified conch called Pondra. Yes, perfect, very nice. So ये जो सब शंखों के नाम लिखे हुए हैं इसलिए लिखे हुए हैं because all of them are very auspicious. Especially भगवान कृष्ण का जो शंख है पंचजन्य बहुत auspicious है, बहुत शुभ है, right? Okay, so उसके बाद क्या हुआ? अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको. Okay, let's see. ममता पात्र जी, आप इसका मीनिंग पढ़ोगे इंग्लिश या हिंदी में? You can unmute yourself. Yes. Yes, ma'am. Yes. आपको हे राजन. हाँ, yes, go ahead. हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए. Yes, हरि बोल. Thank you so much ममता माता जी. हम एक बार इंग्लिश का मीनिंग करके एक बार पांचों शंख के नाम रिवाइज करेंगे. ओके. सो आयुष्मान प्रभु जी, आप इंग्लिश में इसका मीनिंग पढ़ोगे? Yes, ma'am. King Yudhishthira, the son of Kunti, below his coattail the Ananta Vijaya and Nakula and Sahadeva, below the Sughosha and Manipuspaka. Yes, very good. Thank you so much प्रभु जी. Okay, perfect. तो हमें ये जो शंख के नाम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. तो भगवान कृष्ण के शंख का नाम है पंचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, भीम के शंख का नाम है पौंड्र, ठीक है. युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय, युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय, और नकुल और सहदेव का शंख का नाम है सुघोष एंड मणिपुष्प. यानी कि नकुल के शंख का नाम है सुघोष और सहदेव के शंख का नाम है मणिपुष्पक.
उसके बाद क्या हुआ? नाउ देन आफ्टर दिस शंख बजा दिया. अब शंख बजाने का मतलब होता है कि लड़ाई शुरू हो रही है, राइट? शंख बजाकर लड़ाई शुरू करते हैं. नाउ शंख बजाने के बाद सडनली अर्जुन कृष्णा को बोलते हैं कि कृष्णा, मैं ना ये देखना चाहता हूँ कि मुझसे लड़ाई करने कौन आया है. Who are those people who have come here to fight with me? ठीक है. सो इमेजिन करो आप लोग अपने फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, और फाइनल एग्जाम के लिए आप लोग सब लोग क्लासरूम में पहुंच गए हो. मैम ने बोला है बस 5 मिनट से आप लोग रेडी हो जाओ, अपनी डेस्क रेडी कर लो, अपना पेन बाहर निकाल लो, अगर पेंसिल यूज करनी है तो मेक श्योर यू शार्पन योर पेंसिल, सब कुछ रेडी होकर बैठ जाओ. एंड सडनली 5 मिनट पहले, एग्जाम से 5 मिनट पहले आप खड़े होकर बोलते हैं मैम मैं ना एक्चुअली देखना चाहता हूँ कि हमारे जो मेरी क्लास में है ना वो कौन कौन से लोग हैं जिसके साथ मैं compete करूंगा, यानी कि वो इंटेलिजेंट लोग कौन है. मैं बहुत घबरा रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन है जो अच्छे से प्रिपेयर कर आए हैं. सो हाउ विल यू फील, राइट? कि अब मैम बोल रही कि बस एग्जाम शुरू होने वाला है, आप बोलोगे नहीं नहीं मैम मैं एक्चुअली ये देखना चाहता हूँ कि मेरी क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे कौन है, कोई कहीं मुझसे वो ज्यादा स्कोर तो नहीं करेंगे. तो क्या वो सही समय है वो सब चीज करने का जब एग्जाम बस शुरू ही होने वाला है, राइट? नो माताजी. No, na, right? So this is exactly what Arjun felt. Arjun, the war was about to begin. और उनको ये भी पता था कि उनको लड़ाई कौरवों से लड़नी है और कौरवस उनके कजन्स ही है. पर शुरू होने से पहले ही उन्होंने कृष्णा को बोला कि हे कृष्णा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे युद्ध के बीच में लेकर जाओ, यानी कि जो लड़ाई के मैदान है उसके बिल्कुल बीच में लेकर जाओ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे लड़ने के लिए कौन आया है, कौन है ये लोग जो मुझसे लड़ने के लिए इच्छुक है. Who are these people who want to fight with me? And he knows that he knew they were all Kauravas, and of course there were other people who were supporting Kauravas. So let's see. Okay. So Vidit Prabhuji, can you read this shloka? Let me. Yes. Can you read this shloka? Yes, Mataji. सैन्योरुभ्योर् अर्जुनवाच सैन्योरुभ्योर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत यावादेतान् निरीक्ष्य अहं योद्धुकामान् अवस्थितान् केर्माया साह योद्धाव्याम्. It's not clear. Next line. Asmin Rana. Yes, Mataji. Asmin Rana. Mataji, everyone is sending messages in the chat, so it is, I cannot see. So Asmin Rana Samudyad me. So let's see what does this really mean. इसका मतलब क्या है? Okay. Oh, sorry. Sorry, my screen hang हो गई. Okay, so who wants to read this meaning? Vrinda Mataji, do you want to read the meaning in Hindi or English? Okay, Vrinda Mataji, you're able to see my screen? I think let me start again. Yes, Mataji. You're okay, sorry. Let me share again, okay? Okay, you're able to see my screen, beta? Yes, Mataji. Sure. Will you read the meaning? Yes, Mataji. अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वाले और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसमें मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं. Yes, very nice. Yes, perfect. तो उन्होंने बोला कि मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जो मुझसे लड़ने आया और किससे मुझे लड़ाई करनी है. You know, ऐसे कौन है जिससे मुझे लड़ाई करनी है, right? So पावनी माता जी आप इंग्लिश में पढ़ोगे बेटा इसका मीनिंग? You can unmute yourself.
O infallible one, please draw my chariot between the two armies so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms. Yes, perfect. So when Arjun said this, तो कृष्णा ने क्या करा? कृष्णा took the chariot. वो रथ लेकर बिल्कुल बीच में पहुंच गए, यानी कि कौरवास और पांडवास के बीच में पहुंच गए. And because Krishna is very intelligent, he went right in front of those people जिससे अर्जुन को बहुत लगाव था. वो दो लोग थे, पितामह और उनके गुरु. सो पार्थ प्रभु जी, आपको पता है कि अर्जुन के गुरु कौन थे? पार्थ प्रभु जी और शौर्य प्रभु जी और आरव प्रभु जी, डू यू नो अर्जुन के गुरु कौन? द्रोणाचार्य. द्रोणाचार्य, दैट्स राइट, द्रोणाचार्य, यस द्रोणाचार्य. तो द्रोणाचार्य के पास गए और भीष्म पितामह, यानी कि उन्होंने रथ जाकर वहां रोका जहां पर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह खड़े थे. अब द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को देखकर अर्जुन बहुत ज्यादा घबरा गए. ही गॉट वेरी नर्वस, राइट? और वो बिल्कुल वैसे ही उनको पसीने छूटने लगे. he was feeling very uncomfortable. मैम क्योंकि भीष्म पितामह ना बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे और वो उनके परदादा भी थे, राइट? भीष्म पितामह, अर्जुन भीष्म पितामह से बहुत प्यार करते थे. यस यस, गो अहेड बेटा. मैम भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का भी वरदान. हाँ, यस वृंदा माता जी, दैट्स राइट, एब्सोल्युटली. अच्छा, आप बताओ, आपकी क्लास में आप लोगों को सरप्राइज टेस्ट मिलता है कभी? आपको सरप्राइज टेस्ट होता है? यस मैम. ओके, सो सरप्राइज, कभी सरप्राइज टेस्ट हो और लेट्स से आपने मैथ्स का सरप्राइज टेस्ट है लेट्स से, और आपने मैथ्स का चैप्टर ही नहीं रिवाइज करा, तो आपको कैसी फीलिंग आती है एग्जाम से पहले? आप कैसा फील? नर्वस हो जाते हैं और घबरा जाते हैं कि कैसे करेंगे. हाँ, नर्वस हो जाते हैं, शीतल बाजी, घबरा जाते हैं. और क्या होता है बेटा? पसीने छूट जाते हैं. पसीने छूट जाते हैं, एक्चुअली में होता है, एक्चुअली में पसीना आना शुरू हो जाता है कि नर्वसनेस होती है. और पैर कभी डायलॉग बोलने हो, कोई प्ले करना हो तो मैम इन द मैथ दैट वी विल नॉट डू गुड टू मम्मी वन. हाँ, डर लगता है कि कि अगर अच्छा नहीं हो तो डांट पड़ेगी. और लेट्स से कभी जैसे कि स्टेज पर अचानक बोल दिया कि स्टेज पर जाकर आपको कुछ बोलना है, तो इसे पैर कांपने भी लगते हैं, पसीना आता है ना? सरप्राइज टेस्ट होता है तो हमें लगता है कि ये मैम ने टेस्ट क्यों रख दिया अभी, क्यों रख दिया. माता जी लाइक कभी आप स्टेज पे हो, कभी किसी से माता जी ने जो प्ले करी उन्होंने आपसे एक्स्ट्रा चीज पूछ ली जो आपको स्क्रिप्ट में नहीं थी. हाँ, सो आप नर्वस हो जाते हो, राइट? कि अब क्या होगा. सो एग्जैक्टली दैट इज एग्जैक्टली हाउ अर्जुन वाज फीलिंग. सो अर्जुन के पूरी बॉडी वाज ट्रेम्बलिंग, उसकी पूरा शरीर कांप रहा था, उसका मुंह सूख गया था, उनका एकदम जैसे गला सूख गया था, और उनके हाथ के जो बाल थे वो खड़े हो गए, जैसे रोमटे खड़े हो जाते हैं ना, और उनका जो गंडीव है, उनका जो वो है वो फिसल रहा था, उनकी पूरी स्किन जल रही थी, उनको पसीने आ रहे थे, उनको लग रहा था बस वो खड़े नहीं हो पाएंगे, वो बहुत ही ज्यादा वीक महसूस कर रहे थे. वो कहते बस आई एम नॉट एबल टू स्टैंड, और उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. और जब नर्वस होते हैं ना, अगर कुछ कभी पढ़ा भी होता है ना तब भी भूल जाते हैं, राइट? ऐसा होता है ना कि कभी हम एग्जाम में जा रहे हैं और नर्वस है तो जो पढ़ा है वो भी भूल जाते हैं, है ना? सो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम अर्जुन के साथ हो रहा था. ही वाज गेटिंग वेरी नर्वस. उसको लग रहा था कि वो लड़ने की सारी विधियां भी भूल चुका है. एंड ही वाज लाइक, मेरे को तो हर जगह दिख रहा है कि बहुत ही बुरा होने वाला है, कि मेरे परदादा सामने खड़े, मेरे गुरु सामने खड़े, जिन्होंने मुझे ये विद्या दी, दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, राइट? सो ही वाज फीलिंग वेरी सैड. बट व्हाई वाज ही फीलिंग सैड? Why looking at Dronacharya and Dhritarashtra he was feeling sad? वो उनके परिवार के तरफ से. हाँ, yes, very nice, क्योंकि उनके परिवार के तरफ से थे. और आपको पता है उनको बहुत लगाव भी था. यस मनन प्रभु जी. और what else? अच्छा चलो, और what else? और क्या किस वजह से वो अर्जुन जी ने उन्हीं से सब सीखा था, और आज उनके सामने ही वो सब लड़ रहे थे तो उनको. हाँ, यस, उन्होंने बोला. यस, और माता जी क्योंकि वो एल्डर भी थे, एक एल्डरली पर्सन थे. वेरी नाइस, परफेक्ट. यस, ऑल ऑफ यू राइट. यस, द्रोणाचार्य जी जो थे वो अर्जुन के
गुरु इसलिए भगवान के समान। हाँ यस पार्थ प्रभु जी, यस वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात बोली आपने पार्थ प्रभु जी। तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरु मेरे सामने खड़े, मेरे दादा मेरे सामने खड़े, अगर मैं ये लड़ाई जीत भी जाऊंगा तो मैं इसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, इस जीत को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने ही गुरु को हरा दिया, अपने फैमिली मेंबर को हरा दिया। और उन्होंने बोला कि अगर मेरे इस लड़ाई में मेरे से मेरे गुरु की हत्या हो गई या मेरे दादा की हत्या हो गई तो मुझे तो पाप चढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो मेरे फैमिली मेंबर्स है ना। और उन्होंने बोला कि अगर मेरे जितने भी जैसे बोला आपने पूर्वज हैं, उनके बड़े हैं, अगर वो सब नहीं रहेंगे तो फिर आगे जाकर हमें सही गलत कौन बताएगा। और ही वॉज वेरी कंपैशनेट, वो किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। इनफैक्ट उन्होंने कृष्णा को बोला, कृष्णा मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं लड़ने के बजाय मैं जंगल में जाकर भीख मांगकर जिंदा रहना ज्यादा पसंद करूंगा, बट आई डोंट वांट टू फाइट, बिकॉज ही वाज कंपैशनेट। ही वाज सेइंग अगर मैं लड़ाई में जीत भी गया तो वो जीत किस आधार पर होगी, वो इसके ऊपर होगी कि मैंने अपने ही रिलेटिव्स को, अपने ही गुरु को और अपने परदादा को हरा दिया। सो ही वाज वेरी इनडिसाइसिव कि मैं क्या करूं कृष्णा, हम लड़ाई के बीच में मैदान में खड़े हुए हैं, मेरे सामने मेरे गुरु हैं, मेरे परदादा है, पर मैं लड़ना नहीं चाहता, व्हाट शुड आई डू, राइट। पर Krishna was very confident. Krishna was very confidently only listening. So first chapter में कृष्णा ने एक word भी नहीं बोला, क्योंकि कृष्णा सिर्फ अपने best friend को सुन रहे थे। Arjun was his best friend. So he just like all of you said कि जो friends होते हैं, they help each other, they understand each other, and to understand they first listen. तो बिल्कुल वैसे ही कृष्णा अर्जुन को पहले सुन रहे थे। और कृष्णा ये भी देख रहे थे कि विजय अर्जुन की ही होगी, क्योंकि वहां बहुत सारे अर्जुन के लिए बहुत सारे ऑस्पिशियस साइन थे। और पहला साइन ये था, इनफैक्ट लेट मी आस्क यू, जिस जगह वो लड़ाई हो रही थी कुरुक्षेत्र, आपने कभी कुरुक्षेत्र के बारे में सुना है? कुरुक्षेत्र कैसी जगह है? माता जी मैं जा रखा हूँ। क्या है बेटा, दोबारा बोलो। मैम मैं गया हूँ वहाँ पे। वेरी नाइस, आप जा चुके हो ना। तो जो कुरुक्षेत्र है वो एक धाम है, इट्स एन ऑस्पिशियस प्लेस। वहां पर हाँ माता जी जो वहाँ का टेम्पल है मैम, वो भी मैम उनके रथ जैसा बना हुआ है। हाँ यस, जो अभी टेम्पल बन रहा है, यस यस दैट्स राइट, वो बन रहा है। सो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है, और ये फर्स्ट श्लोक है, इसमें हम पढ़ेंगे, याद करेंगे, ठीक है। उसमें बोलते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी कि जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म का क्षेत्र है। और कौरवास और पांडवास में कौन है जो धर्म के साथ है? आउट ऑफ दीज टू पांडवास। यस, तो अगर लड़ाई धर्म क्षेत्र में हो रही है और पांडवास धर्म के साथ है तो निश्चित ही है ना कि धर्म की विजय होगी, राइट। और सेकंड थिंग, अर्जुन का जो रथ है वो बहुत डिवाइन था, मतलब वो बहुत ही अनोखा रथ था वो, क्योंकि वो उनको किसी ने गिफ्ट करा था। आपको पता है किसने गिफ्ट करा था? सूर्यदेव। नहीं, सूर्यदेव ने नहीं करा था। किसने गिफ्ट करा था? इंद्रदेव ने नहीं करा था। नहीं ब्रह्मा ने भी। चलो मैं हिंट देती हूँ, विष्णु। नहीं उसको जो रथ है वो उन्होंने गिफ्ट करा था, जिसको उन्होंने एक बार पूरा जंगल दे दिया था खाने के लिए। एक देवता है, उनको ना बहुत भूख लगी थी, उनका ना पाचन खराब हो गया था, तो उन्होंने अपना खाना अग्निदेव, यस गर्ल प्रभु जी, यस whoever answered, अग्निदेव ने उनको ये रथ दिया था, ठीक है। और थर्ड चीज थी उनकी कपिध्वज यानी कि हनुमान जी, उनके जो फ्लैग थे, उनके रथ के ऊपर फ्लैग थे, वो हनुमान जी थे। हनुमान जी को हम और किस नाम से बुलाते हैं? किसके पुत्र है हनुमान जी? पवन। और माता जी वो केसरी भी है, क्योंकि वो केसरी के पुत्र है। और पांडवों में से कौन है जो भी पवन पुत्र है? एक और पांडव है जो पवन पुत्र है, यस। तो हनुमान जी एंड भीम आर काइंड ऑफ ब्रदर्स ओनली। तो हनुमान जी सेड आई विल कम एंड प्रोटेक्ट यू इन द वॉर, आप मुझे अपने ध्वज के ऊपर धारण करना और मैं आपकी वॉर में आपकी हेल्प करूंगा, राइट। और फोर्थ था शंखनाद, जब भगवान ने अपना पंचजन्य शंख बजाया उसी समय निश्चित ही हो गया कि पांडवों की विजय होगी ही होगी, राइट।
और फिफ्थ है जो अर्जुन का बो था, अर्जुन का जो धनुष था वो बहुत ही स्पेशल था, वो भी उनको एक देवता से मिला था। तो एनी गेसेस किससे मिला था वो? इंद्रदेव, इंद्रदेव, हाँ, उनके अपने फादर से मिला था। यस, इंद्रदेव। और सब इंद्रदेव, यस, परफेक्ट। और सबसे बड़ा साइन कि पांडवस की विजय होगी ही होगी वो ये थी कि भगवान स्वयं भगवान पांडवस के साथ थे। राइट? आप लोग एग्री करते हो कि जिस क्योंकि कृष्ण जी अर्जुन जी के चैरिटियर थे। हाँ। और हनुमान भी थे मैम। हाँ, यस यस, दैट्स राइट। मैम उनके जो ध्वज था उनके पे हनुमान जी जो थे और कृष्ण थे। और कृष्ण उनके चैरियट ड्राइवर थे। यस, दैट्स राइट। तो देखो, अगर ये तो निश्चित था कि जहां भगवान होंगे वहां पर विजय होगी, राइट? पर आप सोच सकते हो ये तो बहुत ही पार्शल हो गया, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान के बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर भगवान ने कौरवों को मौका ही नहीं दिया कि उनके पास भगवान हो। तो ये इसके बारे में एक स्टोरी सुनेंगे जिसमें कौरवों को भी मौका मिला था कि भगवान उनके साइड हो सकते थे, पर क्या हुआ वो हम स्टोरी के फॉर्म में विल नो दैट। ठीक है? सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब युद्ध शुरू होने वाला था। हाँ, वेरी नाइस, perfectly. So for the benefit of everyone, let's listen to the story one more time. ठीक है? So क्या हुआ था, युद्ध शुरू होने से बिल्कुल थोड़ा सा पहले एक बार दुर्योधन और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए उनकी मदद मांगने के लिए, राइट? और तो सबसे पहले पहुंचे दुर्योधन। उस समय कृष्ण आराम कर रहे थे, ही वाज रेस्टिंग, तो वो लेटे हुए थे। तो दुर्योधन गए और वो कृष्ण के सर के पास जाकर बैठ गए। तो वो गए, उन्होंने देखा अरे कृष्ण आराम कर रहे हैं। वो गुस्सा तो वही, इनिशियली ही वाज वेरी अपसेट, बट ही सेड चलो भाई थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, बिकॉज अभी कृष्णा इज वेट ही इज रेस्टिंग और मुझे तो हेल्प चाहिए, मैं तो हेल्प मांगने आया हूँ। तो वो जाकर उनके सर के पास बैठ गए। उसकी थोड़ी देर बाद अर्जुन आए और अर्जुन ने देखा भगवान श्री कृष्ण आराम कर रहे, तो उन्होंने भगवान को प्रणाम करा और उनके चरणों के पास बैठ गए। तो अब कृष्ण जब उठे, जैसे हम जैसे सोते हैं जब उठते हैं तो हमें जो सामने वो पहले दिखाई देता है, राइट? हम राइट लेफ्ट बाद में देखते हैं, बिल्कुल आंखें खोलकर जो भी सामने होता है वो चीज पहले दिखती है। तो उन्होंने अपने आगे आंखें खोली और सामने अर्जुन खड़े थे। तो उन्होंने अर्जुन को बोला, पार्थ तुम यहाँ कैसे आए हो? तभी वहां पर दुर्योधन भी थे। दुर्योधन ने बोला, हे कृष्णा, मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं भी बैठा हूँ, मैं अर्जुन से पहले आया हूँ। तो कृष्णा मुस्कुराने लगे। कृष्णा न्यू एग्जैक्टली कि दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। तो पर कृष्णा ने बोला, पर मैंने तो सबसे पहले पार्थ को देखा, मैंने तो सबसे पहले अर्जुन को देखा। तो अगर तुम दोनों मुझसे कुछ मांगने आए हो तो सबसे पहला मौका अर्जुन को मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने सबसे पहले उनको देखा। तो दुर्योधन गुस्सा हुआ, उन्होंने बोला ये गलत है, ये न्याय नहीं है, क्योंकि मैं पहले आया था, इसलिए मुझसे पहले पूछो। तो कृष्णा ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, तुम दोनों को ही दो ऑप्शन देता हूँ। मैं खुद लड़ाई नहीं करूंगा, मैं साथ तो दूंगा बट आई विल नॉट फाइट। तो एक तरफ मैं हूं, यानी कि मैं कृष्णा, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ है मेरी नारायणी सेना, बहुत ह्यूज सेना। तो तुम दोनों के पास ऑप्शन है, तुम मुझे ले सकते हो जो मैं लड़ाई नहीं करूंगा, बट हाँ आई विल तुम्हारे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर कर दूंगा, या तो मेरी सेना को ले सकते हो। अब दुर्योधन ने सोचा कि मैं कृष्णा को लेकर क्या करूंगा अगर वो लड़ाई नहीं करेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ टेकिंग कृष्णा इफ ही विल नॉट फाइट? हम तो लड़ाई करने जा रहे हैं, अगर वो लड़ाई नहीं करेंगे तो मेरा क्या फायदा? तो उन्होंने बोला कि आप तो ही वाज थिंकिंग अच्छा नहीं मेरे को तो सेना मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तभी अर्जुन ने बोला कि हे कृष्णा, हे गोविंद, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ हो, चाहे लड़ाई ना करो, क्योंकि आपकी एडवाइस ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। So Duryodhan was very excited कि thank God मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था, right? So भगवान कृष्ण could see what did he wanted? He wanted just the army. तो इस तरह से दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना मिली और कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण स्वयं मिले, और उनके लिए, अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण सारथी बनने के लिए भी तैयार हो गए। Even he became the driver of Arjun. और बिकमिंग अ ड्राइवर ऑफ अ चैरियट, यानी रथ का ड्राइवर बनना आसान नहीं है, क्योंकि इतना शोर होता है ना, तो वहां पर ये नहीं बोल सकते कि लेफ्ट जाओ राइट जाओ। तो अर्जुन पता है क्या करते थे? अर्जुन जब राइट जाना होता था तो भगवान की पीठ पे राइट की तरफ वो पैर मारते थे,
तो भगवान राइट को मुड़ जाते थे, और अगर लेफ्ट जाना होता था तो भगवान की पीठ में लेफ्ट की तरफ पैर मारते थे तो लेफ्ट मुड़ जाते थे। तो इमेजिन करो अपने भक्त के लिए, अपने डिवोटी के लिए भगवान उनसे पैर की मार खाने के लिए भी तैयार थे। एंड so therefore Krishna is called भक्त वत्सल, वो अपनी डिवोटीज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, राइट? So you all understood? How did you like the first chapter? आपको समझ आया फर्स्ट चैप्टर? Yes, ma'am. Yes, Mataji. Yes, ma'am. हमें फर्स्ट चैप्टर से क्या पता चला? If you want to summarize, भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर से क्या बहुत सारी चीजें पता चलती है, but what are the things? हाँ, yes, शीतल माता जी, go ahead. कि माता जी पहले धृतराष्ट्र ने मतलब संजय की मदद से कैसे कुरुक्षेत्र के बारे में जानना, इंक्वायरी और करी, फिर कृष्ण जी ने मौका दिया था अर्जुन और दुर्योधन को कि वो उन्हें ले या उनकी सेना को ले। हाँ। तो उस तरीके से दुर्योधन ने सेना ली थी, अर्जुन ने वो कृष्ण जी लिए थे, और मतलब वो अपने भक्त वत्सल थे, उन्होंने अपने भक्त की मार भी खाई थी। और माता जी मैम कृष्णा वो कई सारी एडवाइस उन्होंने दी थी। दुर्योधन लालची था, यस। माता जी और माता जी जो एक्चुअली नारायणी सेना थी उसने नारायणी सेना लेकर भी वो जीत नहीं पाया। नारायणी सेना लेकर भी जीत नहीं पाया। That's right, yes, yes. माता जी जो नारायणी सेना थी उसमें 2 अक्षुणी सेना को मिला के वो बनी थी। हाँ, yes. वो बहुत ह्यूज सेना थी, yes. Yes, निशिका माता जी, go ahead बेटा। Ma'am, from the story we learned that Krishna was every time with the devotee. He left help to them. हाँ, तो कृष्णा सबके लिए अवेलेबल है, हम ही कृष्णा को चूज नहीं करते, है ना? तो हमें कृष्णा को चूज करना चाहिए। यस शौर्य प्रभु जी, और हमें क्या पता चला था? और हमने स्टोरी में, और स्टोरी से पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें और क्या क्या चीज पता चली? जैसे कि हमें शंख के नाम पता चले, है ना? राइट? और हमें ये पता चला कि अर्जुन इज वेरी कंपैशनेट, क्योंकि अपने फैमिली मेंबर्स को देखकर वो सोच रहे थे कि मैं अगर जीत भी जाऊंगा तो मैं कैसे रहूंगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली मेंबर से लड़ाई कर रहा हूँ। राइट ओके। और हमें ये पता चला कि किसने कितने श्लोक बोले हैं। हाँ, यस, हमें ये भी पता चला कि पूरी भगवत गीता में ये नहीं कि सिर्फ कृष्ण ने बोला, नहीं, अर्जुन ने क्वेश्चंस करे तभी कृष्ण ने बोला। इसलिए हमें बोला जाता है कि अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो यू शुड ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस पूछेंगे तभी हमें क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, है ना? यस माता जी। और मैम माता जी पता चला भगवत गीता का मीनिंग। यस, भगवत गीता का मीनिंग कौन बताएगा? भगवत गीता का लिटरल मीनिंग क्या है? भगवत गीता का क्या मतलब है? माता जी भगवान का गीत। भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, भगवान का गीत। यस दैट्स राइट। एक बार ना व्हाट हैपेंड, जब मैंने इनिशियली लाइक इसको ज्वाइन करा था तो तब ना जन्माष्टमी पर एक क्विज थी, तो मैंने उस समय इनिशियली ज्वाइन नहीं करा था। तो इस क्विज में एक क्वेश्चन था कि भगवान ने कौन सा गाना गाया, एंड आई वाज थिंकिंग भगवान ने कौन सा गाना गाया, मतलब भगवान कौन सा गाना गाएंगे? और मुझे बाद में पता चला अच्छा भगवत गीता को बोलते हैं भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। राइट ओके perfect. We also have a quiz, right? So are you all excited to do a quiz? Yes, yes Mataji. Okay, perfect. Let me share my screen. Yes, ma'am. Okay, just let me know if all of you are able to see my screen. आपको दिखाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, perfect. So let's start. Okay, how many shlokas are there in Bhagavad Gita? Bhagavad Gita में कितने श्लोकास हैं? You can even try it. 700. या 7,000 है, 18,000 है। Ma'am 700. 700. 700. Yes, that's right. Perfect. 700. Yes. Okay. Next.
Who did Lord Krishna speak to? जो भगवान कृष्ण ने किसको अर्जुना। सुनाया? पक्का ना? Yes, Mataji. Yes, perfect, Arjun. That's right. Okay. Okay, next one. Okay, sorry. Is my screen Yes, ma'am. slow हो रही है क्या? Yes, Mataji. बीच में वो lag हो रही है. Yes, Mataji. I will read the question. When did Lord Krishna speak the Bhagavad Gita? कुरुक्षेत्र के Mataji is at the battlefield of Kurukshetra. At the battlefield of Kurukshetra. Perfect. In the middle of the battlefield of Kurukshetra. Lord Krishna speak Bhagavad Gita in Kurukshetra. हाँ ठीक है. Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita in the middle of the armies of Kurukshetra. Now हमने ये तो बता लिया where, but the question is when. कब बोला गया था? माताजी द्वापर युग. At the end of war. At the time of war. At the time of war. Ma'am, when मतलब? Oh, 5,000 years ago. 5,000 years ago. 5,000. हाँ. End of Dwapar Yuga. End of Dwapar Yuga. Yes, लड़ाई चुनने से बिल्कुल थोड़ा सा पहले. Perfect. Very good. Okay, let's look at the next one. Okay, what was the name of Arjun's conch shell? पक्का ना? Confident? Yes, Mataji, Devdatta. Yes, very good. Perfect. That's right. Okay, good. All of you very intelligent. Okay, let's look at the next one. Who was Dhritarashtra's son? Dhritarashtra के पुत्र कौन? Yudhishthir. Kauravas and Pandavas. Yes, Kauravas और Kauravas का head कौन कर रहा था? Duryodhan. Okay, perfect. Very nice. Okay. Who was the father of Pandavas? Pandava किसने? Pandu Mataji. Perfect. Perfect. Very nice. धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी कौन थे? Sanjay. Correct. Mataji, your video and voice are cracking. Yeah, my voice is cracking ना, मुझे भी लग रहा था. Very good. Okay, perfect. मैंने ना I just stopped sharing just to check कि मेरी आवाज crack हो रही है ना. वो my voice was. Mataji, now it's okay. Now it's okay. Now it is okay. Mataji, now it is okay. Okay, ठीक है. Let me share my screen again. हाँ, वो actually ना मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयर करते समय वो स्लो हो गया था ना. Let me put it again. Okay, कुरुक्षेत्र. Okay, what was the name of Lord Krishna's conch shell? भगवान श्री कृष्ण. Panchajanya. Yes, correct. Very nice. Very good. Perfect. Very good. All of you very attentively heard it. Okay. What was the name of Bhishma's conch shell? Bhishma Dev ke Pondra. Very good. Perfect. Okay. Who spoke the Bhagavad Gita? Bhagavad Gita किसने बोली थी? Bhagwan Krishna. Ma'am, Krishna to Arjun. Yes, Krishna. Yes, yes. Thank you, Prachi Mataji. I can see that you're sending message in chat. Very good. Very nice. Perfect. So ये last question है. Actually हम पहले कर चुके थे. How many shlokas are there in Bhagavad Gita? 700 shlokas. Very good. 700. Perfect. Perfect. So I will be sharing this quiz with you also in the WhatsApp group. उसके अलावा आप लोगों का एक होमवर्क है. सो आज हमने भगवान के शंख के बारे में जाना और हमने ये जाना कि भगवान का शंख इज वेरी ऑस्पिशियस. भगवान के साथ साथ हमने पांडु के शंख के बारे में जाना.
दैट मीन्स हमने युधिष्ठिर के शंख के बारे में जाना, अर्जुन के बारे में जाना, भीम, नकुल और सहदेव। तो हमारी एक्टिविटी ये है कि हमें घर में ओरिगेमी से ये शंख बनाने हैं, ठीक है। और इनको बनाकर यू कैन मेक अ वॉल हैंगिंग ऑल्सो, नहीं तो यू कैन बनाकर यू कैन पेस्ट इट इन अ ड्रॉइंग बुक एंड यू कैन नेम देम। तो हमें वो जो 5 शंख के नाम हमने आज पढ़े उसको लिखना है इसके अंदर, ठीक है। I will be sharing the PDF of today's presentation with all of you. तो PDF में names होंगे, so don't worry about it. Ma'am, can you share a video of the how to make a shank? हाँ, yes, there is a YouTube video. I will share that with you. ठीक है, इसमें लिंक है, I will share that. और अगर आप origami से नहीं बनाना चाहते तो आप ड्राइंग भी कर सकते हो, आप ड्राइंग बुक में ड्रॉ भी कर सकते हो। हाँ जी बेटा, माता जी मैंने बना रखा है, that's very nice. हरी बोल, very beautiful. सो उसके ऊपर जो शंख बनाए हैं उनके 5 शंख के नाम भी लिखने हैं, ठीक है, सो दैट वी रिमेम्बर कि कौन कौन से शंख है। माता जी यस माता जी, हमें इसका अलग से ड्राइंग फाइल बनाना है। हाँ, इट विल बी गुड अगर आप अलग से बना सके, क्योंकि आगे भी हर क्लास के बाद एक एक्टिविटी होगी, तो अगर हम अलग से बनाएंगे तो इट विल बी वेरी नाइस इफ पॉसिबल। Can we make the scrap file? हाँ, आप स्क्रैप फाइल बना सकते हैं, यानी कि आप A4 साइज के पेपर्स ले सकते हैं। यस बेटा, तो आई वाज सेइंग कि आप A4 साइज के पेपर भी ले सकते हो और आप उनको स्टेपल करके रख सकते हो। अगर आपको पूरी ड्राइंग बुक नहीं लेनी तो जितने जितने पेपर्स यूज होंगे आपकी अलग से फाइल बन जाएगी, ठीक है। ओके मैम। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एट द एंड आपको एक लिंक सेंड किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो लिंक बहुत जरूरी है, इट्स अ गूगल फॉर्म लिंक। उस लिंक को, उसमें बेसिकली कुछ क्वेश्चन है आज के चैप्टर से रिलेटेड, आपको वो क्वेश्चंस करने हैं। बेसिस दैट लिंक आपकी अटेंडेंस मार्क होगी कि किस किसने आज क्लास अटेंड करी, और सेकेंडली उसी के बेसिस पे आपको एंड ऑफ 18 डेज आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। इज इट फाइन? ओके मैम। ओके, परफेक्ट। माता जी, हाँ जी बेटा, यस। फीमेल शंख। Oh, very beautiful. Let me spotlight it for everyone. Shagun Mataji, just 1 second. हाँ, very beautiful. Very beautiful, Shagun Mataji. Very beautiful. Perfect. So you can write 5 names of Shanka Samved. जैसे आपने बहुत सुंदर से लिखा है स्केच पेन से, ऐसे वो 5 शंख के नाम आप लिख सकते हो। You can write कृष्णा का शंख पंचजन्य है, फिर आप युधिष्ठिर महाराज के शंख का नाम लिख सकते हो, अर्जुन के शंख का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके माता जी, ठीक है। So before we end the class, we will do a closing prayer. Okay, so all of us can recite this prayer together. It's a beautiful prayer. Okay. So you can unmute yourself, or if you can unmute yourself, we can recite this prayers together. This prayer basically tells us कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए. What is the importance of Bhagavad Gita? Okay. एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव तस्य नामयानि सर्वाभ्य एकम तस्य देवस्य सेवा देवाकी पुत्र। परफेक्ट। सो इसका मीनिंग एक बार पढ़ेंगे। Ma'am, can I read the meaning? हाँ, let अच्छा अगर हम सब पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ ठीक है, yes, okay. Who wants to read the meaning? Ma'am, can I read? Ma'am, can I read the meaning? Can Shaurya Prabhuji read the meaning? Is it fine if Shaurya Prabhuji reads the meaning? Ma'am, can I also read? हाँ, yes, Nishika Mataji, after Shaurya Prabhuji you can read the meaning. Sure. Shaurya Prabhuji, go ahead. Okay, ma'am. There need be only one holy scripture, the divine Gita sung by Lord Krishna. Only one worshipable Lord Shri Krishna. One mantra, his holy name, and only one duty, devotional service unit unto that supreme worshipable Lord Shri Krishna.
वेरी नाइस, हरी हरी बोल शौर्य प्रभु जी, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मीनिंग है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है कि दे नीड बी ओनली वन होली स्क्रिप्चर, यानी कि अगर होली स्क्रिप्चर तो भगवत गीता इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। और एक ही वर्शिपेबल गॉड है, वो है भगवान श्री कृष्ण, और एक ही मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, और हमारी एक ही ड्यूटी है, वो है भगवान श्री कृष्ण की वर्शिप करना। निशिका माता जी, you want to read it? Yes, ma'am. Go ahead, go ahead. There need be only one holy scripture, the division Gita sung by the Lord Sri Krishna, only one worshipable Lord Sri Krishna, only one mantra, Sri holy name, and only one duty, devotional service into that supreme worshipable Lord Sri Krishna. Very nice, very nice. Thank you so much, Nishika Mataji. Very nice. There's only one thing which is left, which is we had to just recite this shloka that we had, the first shloka. So all of you can repeat after me. Dhritarashtravacha. धृतराष्ट्रवाच। आप लोग unmute कर you can repeat after me. It's very, हाँ, my screen is paused. Okay, sorry. तो आप लोग अनम्यूट करके मेरे साथ बोल सकते हो। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस श्लोका? आप में से किस किस को ये श्लोका ऑलरेडी आता है? माताजी आए। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो दिस श्लोका? परफेक्ट, सो लेट्स रिसाइट वन मोर टाइम। ठीक है। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। वेरी नाइस।